वचन को हमने पढ़ा। अब इसके बाद हमारे पास जो समय है वो हिंदी में पढ़ने का समय था। एक बार मैं इसे फिर से पढ़ना चाहूँगी क्योंकि मैं वचन को वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। जो वचन का स्ट्रेंथ है वो हमने खोना नहीं है, ताकत है उसके अंदर, वो हमने खोना नहीं है। क्या है देखिए वचन यहाँ पर 22 वचन से आगे, बट बी ये डूयर्स ऑफ द वर्ड एंड नॉट हियरर्स ओनली, deceiving your own selves. For if any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. But whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. यहाँ पर याकूब की पत्री पहला अध्याय 22 वचन से 25 वचन तक पढ़ेंगे। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुँह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। और एक बार पढ़ेंगे, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुँह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता के सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। वन ईयर का बाइबल रीडिंग प्लान जो है उसमें जेम्स 2nd चैप्टर और फिर पूरा 3rd चैप्टर में जाकर 1 to 13th वर्स तक, उसके बाद एजेकियल 20 चैप्टर 21 चैप्टर। एक साल के बाइबल रीडिंग प्लान में याकूब की पत्री 2 अध्याय 3 से लेकर 1 से 13 वचन तक, 2 अध्याय और 3 अध्याय, 2 अध्याय से तीसरे अध्याय में जाना है, तीसरे अध्याय से 1 से 13 वचन तक, और फिर बाद में यहेजकेल की भविष्यवाणी 20 अध्याय 21 अध्याय हमने पढ़ना है। तो पहले हम इंग्लिश में किंग जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे और फिर हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। Chapter 2, James chapter 2. We must not regard the rich and despise the poor. The guilt of anyone breach of the law of faith without works. First verse से पढ़ेंगे, My brethren, have not the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with respect of persons. For if there come unto your assembly a man with a gold ring in goodly apparel, and there come in also a poor man in vile raiment,
And ye have respect to him that weareth the gay clothing, and say unto him, Sit thou here in a good place, and say to the poor, Stand thou there, or sit here under my footstool. Are ye not then partial in yourselves, and are become judges of evil thoughts? Hearken, my beloved brethren, hath not God chosen the poor of this world, rich in faith, and heirs of the kingdom which he hath promised to them that love him? But ye have despised the poor. Do not rich men oppress you, and draw you before the judgment seats? Do not they blaspheme that worthy name by the which ye are called? If ye fulfill the royal law according to the scripture, Thou shalt love thy neighbor as thyself, ye do well. But if ye have respect to persons, ye commit sin, and are convinced of the law as transgressors. For whosoever shall keep the whole law, and yet offend in one point, he is guilty of all. For he that said, Do not commit adultery, said also, Do not kill. Now if thou commit no adultery, yet if thou kill, thou art become a transgressor of the law. So speak ye, and so do, as they that shall be judged by the law of liberty. For he shall have judgment without mercy, that hath shewed no mercy, and mercy rejoiceth against judgment. What doeth it profit, my brethren, though a man say he hath faith, and have not works? Can faith save him? If a brother or sister be naked and destitute of daily food, and one of you say unto them, Depart in peace, be ye warmed and filled, notwithstanding ye give them not those things which are needful to the body, but doeth it profit? Even so faith, if it hath not works, is dead, being alone. Yea, a man may say, Thou hast faith, and have works. Shew me thy faith without thy works, and I will shew thee my faith by my works. Thou believest that there is one God, thou doest well. The devils also believe and tremble. But wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead? Was not Abraham our father justified by works, when he had offered Isaac his son upon the altar? Seest thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect? And the scripture was fulfilled which saith, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness, and he was called the friend of God. Yea, see then how that by works a man is justified, and not by faith only. Likewise also was not Rahab the harlot justified by works, when she had received the messengers, and had sent them out another way? For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Chapter 3. We must not rashly or arrogantly reprove others. The importance of governing the tongue. How true wisdom will manifest itself in opposition to strife and envy. फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे, ये फर्स्ट वर्स से 13 वर्स तक पढ़ना है थर्ड चैप्टर में से. माई ब्रेदरन, बी नॉट मेनी मास्टर्स, नोविंग दैट वी शैल रिसीव द ग्रेटर कंडेमनेशन. For in many things we offend all.
If any man offered not in word, the same is a perfect man, and able also to bridle the whole body. Behold, we put bits in the horses' mouths, that they may obey us, and we turn about their whole body. Behold also the ships, which though they be so great, and are driven of fierce winds, yet are they turned about with a very small helm, whithersoever the governor listeth. Even so the tongue is a little member, and boasteth great things. Behold, how great a matter a little fire kindleth, and the tongue is a fire, a world of iniquity. So is the tongue among our members, that it defileth the whole body, and setteth on fire the course of nature, and it is set on fire of hell. For every kind of beasts and of birds and of serpents and of things in the sea is tamed, and hath been tamed of mankind. But the tongue can no man tame. It is an unruly evil, full of deadly poison. Therewith bless we God, even the Father, and therewith curse we men, which are made after the similitude of God. Out of the same mouth proceedeth blessing and cursing. My brethren, these things ought not so to be. Doeth a fountain send forth at the same place sweet water and bitter? Can the fig tree, my brethren, bear olive berries, either a vine figs? So can no fountain both yield salt water and fresh. Who is a wise man, and endued with knowledge among you? Let him shew out of a good conversation his works, with meekness of wisdom. But if ye have bitter envying and strife in your hearts, glory not, and lie not against the truth. This wisdom descendeth not from above, but is earthly, sensual, devilish. For where envying and strife is, there is confusion and every evil work. But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace. एक्चुअली हमको ये 13 तक ही पढ़ना था, जस्ट 2-4 वचन हम आगे निकल गए. ये यहाँ तक है. हु इज अ वाइस मैन एंड एंड्योर्ड विथ नॉलेज अमॉन्ग यू, लेट हिम shew out of a good conversation his works with meekness of wisdom. बस यहाँ तक है. हम हिंदी में इसी वचनों को पढ़ेंगे BSI बाइबल में से. पक्षपात के विरुद्ध चेतावनी. 2 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे. हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ न हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो तू वहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तू वहाँ खड़ा रहे या मेरे पाँव के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले न ठहरे? हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं? पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया. क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते
और क्या वे ही तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसकी तुम कहलाते हो? तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था की पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो, पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो। और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। इसलिए कि जिसने यह कहा तू व्यभिचार न करना, उसी ने यह भी कहा तू हत्या न करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की तो भी तो व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। विश्वास और कर्म 14 वचन से आगे। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इसमें क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उसने प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है तो अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास का व्यर्थ है? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही राहब वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी? अतः जैसी देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। जीभ को वश में करना 3 अध्याय 1 वचन से। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनको सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है
जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर प्रकार के वन पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। स्वर्गीय ज्ञान। 13 वचन, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। एजेकियल 20 चैप्टर 1 वचन से पढ़ेंगे। God refuses to be consulted by the elders of Israel. Their rebellions he threatens to rule them with rigor, but promises to gather them. First verse से पढ़ेंगे। And it came to pass in the 7th year, in the 5th month, the 10th day of the month, that certain of the elders of Israel came to inquire of the Lord and sat before me. Then came the word of the Lord unto me, saying, Son of man, speak unto the elders of Israel, and say unto them, Thus saith the Lord God, Are ye come to inquire of me? As I live, saith the Lord God, I will not be inquired of by you. Wilt thou judge them, Son of man? Wilt thou judge them? Cause them to know the abominations of their fathers, and say unto them, Thus saith the Lord God, In the day when I chose Israel, and lifted up mine hand unto the seed of the house of Jacob, and made myself known unto them in the land of Egypt, when I lifted up mine hand unto them, saying, I am the Lord your God, in the day that I lifted up mine hand unto them, to bring them forth of the land of Egypt into a land that I had espied for them, flowing with milk and honey, which is the glory of all lands. 7th verse, then उसके आगे भी पढ़ेंगे। Then said I unto them, Cast ye away every man the abominations of his eyes, and defile not yourselves with the idols of Egypt. I am the Lord your God. But they rebelled against me, and would not hearken unto me. They did not every man cast away the abominations of their eyes, neither did they forsake the idols of Egypt. Then I said, I will pour out my fury upon them, to accomplish my anger against them in the midst of the land of Egypt. But I wrapped for my name's sake, that it should not be polluted before the heathen among whom they were, in whose sight I made myself known unto them, in bringing them forth out of the land of Egypt. Wherefore I caused them to go forth out of the land of Egypt, and brought them into the wilderness. And I gave them my statutes, and shewed them my judgments, which if a man do, he shall even live in them. Moreover also I gave them my Sabbaths,
to be a sign between me and them, that they might know that I am the Lord that sanctify them. But the house of Israel rebelled against me. In the wilderness they walked not in my statutes, and they despised my judgments, which if a man do, he shall even live in them. And my Sabbaths they greatly polluted. Then I said, I would pour out my fury upon them in the wilderness to consume them. But I roughed for my name's sake, that it should not be polluted before the heathen, in whose sight I brought them not. Yet also I lifted up my hand unto them in the wilderness, that I would not bring them into the land which I had given them, flowing with milk and honey, which is the glory of our lands, because they despised my judgments and walked not in my statutes, but polluted my Sabbaths, for their heart went after their idols. Nevertheless, mine eye spared them from destroying them, neither did I make an end of them in the wilderness. But I said unto their children in the wilderness, walk ye not in the statutes of your fathers, neither observe their judgments, nor defile yourselves with their idols. I am the Lord your God. Walk in my statutes, and keep my judgments, and do them, and hallow my Sabbaths, and they shall be a sign between me and you, that ye may know that I am the Lord your God. Notwithstanding, the children rebelled against me. They walked not in my statutes, neither kept my judgments to do them, which if a man do, he shall even live in them. They polluted my Sabbaths. Then I said, I would pour out my fury upon them, to accomplish my anger against them in the wilderness. Nevertheless, I withdrew mine hand, and roughed for my name's sake, that it should not be polluted in the sight of the heathen, in whose sight I brought them forth. I lifted up mine hand unto them also in the wilderness, that I would scatter them among the heathen, and disperse them through the countries, because they had not executed my judgments, but had despised my statutes, and had polluted my Sabbaths, and their eyes were after their fathers' idols. Wherefore I gave them also statutes that were not good, and judgments whereby they should not live, and I polluted them in their own gifts, in that they caused to pass through the fire all that openeth the womb, that I might make them desolate, to the end that they might know that I am the Lord. Therefore, Son of Man, speak unto the house of Israel, and say unto them, Thus saith the Lord God, yet in this your fathers have blasphemed me, in that they have committed a trespass against me. For when I had brought them into the land for the which I lifted up mine hand to give it to them, then they saw every high hill and all the thick trees, and they offered their sacrifices, and there they presented the provocation of their offering. There also they made their sweet savour, and poured out their drink offering. Then I said unto them, What is the high place whereunto ye go? And the name thereof is called Bama unto this day. Wherefore say unto the house of Israel, Thus saith the Lord God, Are ye polluted after the manner of your fathers, and commit ye whoredom after their abominations? For when ye offer your gifts, when ye make your sons to pass through the fire, ye pollute yourselves with all your idols, even unto this day. And shall I be inquired of by you, O house of Israel? As I live, saith the Lord God, I will not be inquired of by you.
and that which cometh into your mind shall not be at all that ye say, we will be as the heathen, as the families of the countries, to serve wood and stone. As I live, saith the Lord God, surely with a mighty hand, and with a stretched out arm, and with fury poured out, will I rule over you. And I will bring you out from the people, and will gather you out of the countries wherein ye are scattered, with a mighty hand, and with a stretched out arm, and with fury poured out. And I will bring you into the wilderness of the people, and there will I plead with you face to face, like as I pleaded with your fathers in the wilderness of the land of Egypt, so will I plead with you, saith the Lord God. And I will cause you to pass under the rod, and I will bring you into the bond of the covenant, and I will purge out from among you the rebels, and them that transgress against me. I will bring them forth out of the country where they sojourn, and they shall not enter into the land of Israel, and ye shall know that I am the Lord. As for you, O house of Israel, thus saith the Lord God, go ye, serve ye, every one his idols, and hereafter also, if ye will not hearken unto me, but pollute ye my holy name, no more with your gifts and with your idols. For in mine holy mountain, in the mountain of the height of Israel, saith the Lord God, there shall all the house of Israel, all of them in the land, serve me. There will I accept them, and there will I require you your offerings, and the first fruits of your oblations with all your holy things. I will accept you with your sweet savour, when I bring you out from the people, and gather you out of the countries wherein ye have been scattered, and I will be sanctified in you before the heathen. And ye shall know that I am the Lord, when I shall bring you into the land of Israel, into the country of for the which I lifted up mine hand to give it to your fathers. And there shall ye remember your ways, and all your doings, wherein ye have been defiled, and ye shall loathe yourselves in your own sight for all your evils that ye have committed. And ye shall know that I am the Lord, when I have wrath with you for my name's sake, not according to your wicked ways, nor according to your corrupt doings, O ye house of Israel, saith the Lord God. Moreover the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, set thy face toward the south, and drop thy word toward the south, and prophesy against the forest of the south field, and say to the forest of the south, Hear the word of the Lord. Thus saith the Lord God, Behold, I will kindle a fire in thee, and it shall devour every green tree in thee, and every dry tree, and flaming flame shall not be quenched, and all faces from the south to the north shall be burned therein. And all flesh shall see that I, the Lord, have kindled it. It shall not be quenched. Then said I, Ah, Lord God, they say of me, Doeth he not speak parables? Chapter 21. Ezekiel prophesies against Israel with a sign of sighing, etc. First verse se padhenge. And the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, set thy face toward Jerusalem, and drop thy word toward the holy places, and prophesy against the land of Israel. And say to the land of Israel, Thus saith the Lord, Behold, I am against thee, and will draw forth my sword out of his sheath, and will cut off from thee the righteous and the wicked.
seeing then that I will cut off from thee the righteous and the wicked. Therefore shall my sword go forth out of his sheath against all flesh from the south to the north, that all flesh may know that I, the Lord, have drawn forth my sword out of his sheath. It shall not return any more. Sigh therefore, thou son of man, with the breaking of thy loins, and with bitterness sigh before their eyes. And it shall be, when they say unto thee, Wherefore sighest thou? That thou shalt answer, For the tidings, because it cometh, and every heart shall melt, and all hands shall be feeble, and every spirit shall faint, and all knees shall be weak. As water, behold, it cometh, and shall be brought to pass, saith the Lord God. Again the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, prophesy and say, Thus saith the Lord, say, a sword is sharpened and also furbished. It is sharpened to make a sore's laughter. It is furbished that it may glitter. Should we then make mirth? It contamineth the rod of my son, as every tree, and he hath given it to be furbished, that it may be handled. This sword is sharpened, and it is furbished, to give it unto the hand of the slayer. Cry and howl, Son of man, for it shall be upon my people, it shall be upon all the princes of Israel. Terrors by reason of the sword shall be upon my people. Smite therefore upon thy thigh, because it is a trial. And what if the sword contemn even the rod? It shall be no more, saith the Lord God. Thou therefore, son of man, prophesy and smite thine hands together, and let the sword be doubled the third time. The sword of the slain, it is the sword of the great men that are slain, which entereth into their privy chambers. I have set the point of the sword against all their gates, that their heart may faint, and their ruins be multiplied. Ah, it is made bright, it is wrapped up from the slaughter. Go thee one way or other, either on the right hand or on the left, whithersoever thy face is set. I will also smite mine hands together, and I will cause my fury to rest. I, the Lord, have said it. The word of the Lord came unto me, saying, Also thou, son of man, appoint thee 2 ways, that the sword of the king of Babylon may come, both twain shall come forth out of the land, out of one land, and choose thou a place. Choose it at the head of the way to the city. Appoint a way that the sword may come to Ribbath of the Ammonites, and to Judah in Jerusalem, the defenced. For the king of Babylon stood at the parting of the way, at the head of the 2 ways to use divination. He made his arrows bright. He consulted with images. He looked in the liver. देखिए फिर से 21th वचन. For the king of Babylon stood at the parting of the way, at the head of the 2 ways, to use divination. He made his arrows bright. He consulted with images. He looked in the liver. At his right hand was the divination for Jerusalem, to appoint captains, to open the mouth in the slaughter, to lift up the voice with shouting, to appoint battering rams against the gates, to cast a mount, and to build a fort. And it shall be unto them as a false divination in their sight, to them that have sworn oaths, but he will call to remembrance the iniquity, that they may be taken. Therefore thus saith the Lord God,
because ye have made your iniquity to be remembered, in that your transgressions are discovered, so that in all your doings your sins do appear. Because I say that ye are come to remembrance, ye shall be taken with the hand. And thou, profane wicked princes, profane, profane wicked prince of Israel, whose day is come when iniquity shall have an end. Thus saith the Lord God, remove the diadem and take off the crown. This shall not be the same. Exalt him that is low, and abase him that is high. I will overturn it, and it shall be no more, until he come whose right it is, and I will give it him. And thou, son of man, prophesy and say, thus saith the Lord God concerning the Ammonites and concerning their reproach. Even say thou, the sword is drawn from the slaughter, it is furbished to consume because of the glittering. Whilst they see vanity unto thee, whilst they divine a lie unto thee, to bring thee upon the necks of them that are slain of the wicked, whose day is come, when their iniquity shall have an end. Shall I cause it to return into his sheath? I will judge thee in the place where thou wast created, in the land of thy nativity. And I will pour out mine indignation upon thee. I will blow against thee in the fire of my wrath, and deliver thee into the hand of brutish men, and skillful to destroy. Thou shalt be for fuel to the fire. Thy blood shall be in the midst of the land. Thou shalt be no more remembered, for I, the Lord, have spoken it. यह हिजकिय्याह की भविष्यवाणी 20 अध्याय पहले वचन से। परमेश्वर की इच्छा और मनुष्य की अवज्ञा। 7वें वर्ष के 5वें महीने के 10वें दिन को इस्राएल के कितने पुरनिये यहोवा से प्रश्न करने को आए और मेरे सामने बैठ गए। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, इस्राएली पुरनियों से यह कह, प्रभु यहोवा यो कहता है, क्या तुम मुझसे प्रश्न करने आए हो? प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध, तुम मुझसे प्रश्न करने न पाओगे। हे मनुष्य के संतान, क्या तू उनका न्याय न करेगा? क्या तू उनका न्याय न करेगा? उनके पुरखाओं के घिनौने काम उन्हें जता दे और उनसे कहे, प्रभु यहोवा यों कहता है, जिस दिन मैंने इस्राएल को चुन लिया और याकूब के घराने के वंश से शपथ खाई और मिस्र देश में अपने को उन पर प्रकट किया और उनसे शपथ खाकर कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, उसी दिन मैंने उनसे यह भी शपथ खाई कि मैं तुमको मिस्र देश से निकालकर एक देश में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुन लिया है। वह सब देशों का शिरोमणि है और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। फिर मैंने उनसे कहा, जिन घिनौनी वस्तुओं पर तुम में से हर एक की आंखें लगी है, उन्हें फेंक दो और मिस्र की मूर्तों से अपने को अशुद्ध न करो। मैं ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। परंतु वे मुझसे बिगड़ गए और मेरी सुननी न चाही। जिन घिनौनी वस्तुओं पर उनकी आंखें लगी थी, उनको किसी ने फेंका नहीं और न मिस्र की मूर्तों को छोड़ा। तब मैंने कहा, मैं यही मिस्र देश के बीच तुम पर अपनी जलजलाहट भड़काऊंगा और पूरा कोप दिखाऊंगा। तो भी मैंने अपने नाम के निमित्त ऐसा किया कि जिनके बीच वे थे और जिनके देखते हुए मैंने उनको मिस्र देश से निकलने के लिए अपने को उन पर प्रकट किया था, उन जातियों के सामने वे अपवित्र न ठहरे। मैं उनको मिस्र देश से निकालकर जंगल में ले आया। वहां उनको मैंने अपनी विधियां बताई और अपने नियम भी बताए कि जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। देखा क्या लिखा है? परमेश्वर के वचन को हमने फॉलो करना है।
ओके, अब ये तो पुराने नियम में परमेश्वर की इच्छा इसराइल को दिखाई थी, यही इच्छा वो अभी भी हमसे रखता है। हमने जो भी मूर्तियों की बातें हैं उसे छोड़ देना है। जो भी घिनौने चीज़ें हम करते थे वो चीज़ें हमारे पास अब नहीं रखना है। ओके, ये परमेश्वर को भाता नहीं है। और उसके कारण जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार करेंगे तो उसके कारण हमारा परमेश्वर हमें आगे बढ़ने के लिए रास्ते देता है। 12 वचन से आगे, फिर मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए जो मेरे और उनके बीच चिन्ह ठहरे, कि वे जाने कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूँ। तो भी इस्राएल के घराने ने जंगल में मुझसे विद्रोह किया। वे मेरी विधियों पर न चले और मेरे नियमों को तुच्छ जाना, जिन्हें यदि मनुष्य माने तो वह उनके कारण जीवित रहेगा। और उन्होंने मेरे विश्राम दिनों को अति अपवित्र किया। यहाँ पे आपको समझ में आता है, इस्राएल मिस्र में रह चुके थे। फिर इस्राएल मिस्र में रह रहे थे, मिस्रियों के पास जादू टोना के सारी हथियार थे, मूर्तियाँ थी और पावर्स उनको मालूम था। तो इनका भी उनके साथ ये सारे पावर्स का लेन देन शुरू हुआ। ओके, तो वो मिस्र से छोड़ नहीं रहे थे, वो मूर्तियों को छोड़ नहीं रहे थे। ओके, उनको वो आदत पड़ चुकी थी और वो परमेश्वर को चैलेंज कर रहे हैं। ओके, और परमेश्वर उनको परमेश्वर की विधियाँ बताता है। वो अपने आप को प्रकट करके दिया उनको छुड़ाने के लिए। तो हमको भी परमेश्वर ने उद्धार में लाया है, बचाने के लिए हमें पवित्र करके उसने लाया है। और हम फिर इसके अंदर आने के बाद में ये सारी घिनौनी चीज़ों के साथ अगर यीशु में रह रहे हैं तो ये परमेश्वर अपवित्र कर रहे हैं हम परमेश्वर के समयों को। जो उसने हमें लाया है उसको हम तुच्छ जान रहे हैं। तो देखो, परमेश्वर बातें करता है। ओके, ये परमेश्वर जिंदा है और ये बातें करता है, इसके साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। आगे पढ़ेंगे हम। तब मैंने कहा, मैं जंगल में इन पर अपनी जलजलाहट भड़काकर इनका अंत कर डालूंगा। परंतु मैंने अपने नाम के निमित्त ऐसा किया कि वे उन जातियों के सामने जिनके देखते मैं उनको निकाल लाया था अपवित्र न ठहरे। फिर मैंने जंगल में उनसे शपथ खाई कि जो देश मैंने उनको दे दिया और जो सब देशों का शिरोमणि है, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, उसमें उन्हें न पहुंचाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे नियम तुच्छ जाने और मेरी विधियों पर न चले और मेरे विश्राम दिन अपवित्र किए थे, इसलिए कि उनका मन उनकी मूर्तों की ओर लगा रहा। तो भी मैंने उन पर कृपा की दृष्टि की और उन्हें नष्ट न किया और न जंगल में पूरी रीति से उनका अंत कर डाला। तो हम लोग भी बॉर्न अगेन होने के बाद में जब इस प्रकार से कर रहे और परमेश्वर हमको नाश नहीं कर रहा है, तो हमको लगता है कि हमको कोई देखता नहीं है, हमको कोई समझता नहीं है, पहचानता नहीं है ये हम कर रहे हैं करके, है ना। तो फिर मसीह होकर मसीहों के विरोध में जादू टोना की चीज़ों को, समयों को लगाते हैं और फिर मसीहों को ही ट्रैप करते हैं, मसीहों को ट्रैप करते हैं। तो ये क्या हो गया, फिर परमेश्वर का हम जो काम कर रहे हैं उसके विरोध में, परमेश्वर के विरोध में करते हैं और हम नाश नहीं हुए हैं इसका घमंड रखते हैं कि हम देखो हम परमेश्वर में हैं, हम नाश नहीं होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। वो उसकी कृपा दृष्टि है कि ऐसे गंदे काम करने के बावजूद परमेश्वर हमको जिंदा रख रहा है। तो ये क्या है, हमको परमेश्वर ने कृपा की दृष्टि रखी हमारे ऊपर। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको उन कामों के साथ उसने स्वीकारा, ये नहीं है उसका मतलब। वो कहता है कि कृपा दृष्टि की और उन्हें नष्ट न किया और न जंगल में पूरी रीति से उसका अंत कर डाला। 18 वचन से आगे पढ़ेंगे। फिर मैंने जंगल में उनकी संतान से कहा, अपने पुरखाओं के विधियों पर न चलो, न उनकी रीतियों को मानो और न उनके मूर्तें पूज कर अपने को अशुद्ध करो। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरी विधियों पर चलो और मेरे नियमों के मानने में चौकसी करो और मेरे विश्राम दिनों को पवित्र मानो कि वे मेरे और तुम्हारे बीच चिन्ह ठहरे।
और जिससे तुम जानो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। परंतु उनकी संतान ने भी मुझसे विद्रोह किया। वे मेरी विधियों पर न चले, न मेरे नियमों के मानने में चौकसी की, जिन्हें यदि मनुष्य माने तो वह उनके कारण जीवित रहेगा। मेरे विश्राम दिनों को उन्होंने अपवित्र किया। तब मैंने कहा, मैं जंगल में उन पर अपनी जलजलाहट भड़काकर अपना कोप दिखलाऊंगा। तो भी मैंने हाथ खींच लिया और अपने नाम के निमित्त ऐसा किया कि उन जातियों के सामने जिनके देखते हुए मैं उन्हें निकाल लाया था, वे अपवित्र न ठहरे। फिर मैंने जंगल में उनसे शपथ खाई कि मैं तुम्हें जाति जाति में तितर बितर करूंगा और देश देश में छितरा दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे नियम न माने, मेरी विधियों को तुच्छ जाना, मेरे विश्राम दिनों को अपवित्र किया और अपने पुरखाओं की मूर्तों की ओर उनकी आंखें लगी रही। फिर मैंने उनके लिए ऐसी ऐसी विधियां ठहराई जो अच्छी न थी, और ऐसी ऐसी रीतियां जिनके कारण वे जीवित न रह सके, अर्थात वे अपने सब पहलोठों को आग में होम करने लगे। इस रीति मैंने उन्हें उन्हीं की भेंटों के द्वारा अशुद्ध किया, जिससे उन्हें निर्वंश कर डालूं, और तब वे जान ले कि मैं यहोवा हूं। 27 वचन से आगे, हे मनुष्य के संतान, तो इस्राएल के घराने से कहे, प्रभु यहोवा यो कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने इसमें भी मेरी निंदा की कि उन्होंने मुझसे विश्वासघात किया, क्योंकि जब मैंने उनको उस देश में पहुंचाया जिसे उन्हें देने की शपथ मैंने उनसे खाई थी, तब वे हर एक ऊंचे टीले और हर एक घने वृक्ष पर दृष्टि करके वही अपने मेल बलि चढ़ाने लगे, और वहां रीस दिलाने वाली अपनी भेंट चढ़ाने लगे, और वही अपना सुखदायी सुगंध द्रव्य जलाने लगे, और वही अपने तपावन देने लगे। तब मैंने उनको पूछा, जिस ऊंचे स्थान को तुम लोग जाते हो उससे क्या प्रयोजन है? इसी से उसका नाम आज तक बामा कहलाता है। इसलिए इस्राएल के घराने से कहे, प्रभु यहोवा तुमसे यह पूछता है, क्या तुम भी अपने पुरखाओं के रीति पर चलकर अशुद्ध होकर और उनके घिनौने कामों के अनुसार व्यभिचारिणी के समान काम करते हो? आज तक जब जब तुम अपनी भेंटें चढ़ाते और अपने बाल बच्चों को होम करके आग में चढ़ाते हो, तब तब तुम अपनी मूर्तों के कारण अशुद्ध ठहरते हो। हे इस्राएल के घराने, क्या तुम मुझसे पूछने पाओगे? प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की शपथ तुम मुझसे पूछने न पाओगे। जो बात तुम्हारे मन में आती है, हम काठ और पत्थर के उपासक होकर जाति जाति और देश देश के कुलों के समान हो जाएंगे, वह किसी भांति पूरी नहीं होगी, वह किसी भांति पूरी नहीं होने की। परमेश्वर दंड देता और क्षमा भी करता है। 33 वचन से आगे, प्रभु यहोवा यो कहता है, मेरे जीवन की शपथ मैं निश्चय बलि हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से और भड़काई हुई जलजलाहट के साथ तुम्हारे ऊपर राज्य करूंगा। मैं बलि हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से और भड़काई हुई जलजलाहट के साथ तुम्हें देश देश के लोगों में से अलग करूंगा, और उन देशों से जिनमें तुम तितर पितर हो गए थे इकट्ठा करूंगा, और मैं तुम्हें देश देश के लोगों के जंगल में ले जाकर वहां आमने सामने तुमसे मुकद्दमा लड़ूंगा। जिस प्रकार मैं तुम्हारे पूर्वजों से मिस्र देश रूपी जंगल में मुकद्दमा लड़ता था, उसी प्रकार तुमसे मुकद्दमा लड़ूंगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। मैं तुम्हें लाठी के तले चलाऊंगा और तुम्हें वाचा के बंधन में डालूंगा। मैं तुम में से सब विद्रोहियों को निकालकर जो मेरा अपराध करते हैं तुम्हें शुद्ध करूंगा, और जिस देश में वे टिकते हैं उसमें से मैं उन्हें निकाल दूंगा, परंतु इस्राएल के देश में घुसने न दूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। हे इस्राएल के घराने, तुमसे तो प्रभु यहोवा यो कहता है, जाकर अपनी अपनी मूर्तों को उपासना करो, और यदि तुम मेरी न सुनोगे तो आगे को भी यही किया करो।
परंतु मेरे पवित्र नाम को अपनी भेंटों और मूर्तों के द्वारा फिर अपवित्र न करना, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि इस्राएल का सारा घराना अपने देश में मेरे पवित्र पर्वत पर, इस्राएल के ऊंचे पर्वत पर सब का सब मेरी उपासना करेगा। वही मैं उनसे प्रसन्न होऊंगा और वही मैं तुम्हारी उठाई हुई भेंटें और चढ़ाई हुई उत्तम उत्तम वस्तुएं और तुम्हारी सब पवित्र की हुई वस्तुएं तुमसे लिया करूंगा। जब मैं तुम्हें देश देश के लोगों में से अलग करूं और उन देशों से जिनमें तुम तितर पितर हुए हो इकट्ठा करूं, तब तुमको सुखदायक सुगंध जानकर ग्रहण करूंगा और अन्य जातियों के सामने तुम्हारे द्वारा पवित्र ठहराया जाऊंगा। जब मैं तुम्हें इस्राएल के देश में पहुंचाऊं, जिसके देने की शपथ मैंने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। वहां तुम अपनी चाल चलन और अपने सब कामों को जिनके करने से तुम अशुद्ध हुए हो स्मरण करोगे और अपने सब बुरे कामों के कारण अपनी दृष्टि में घिनौने ठहरोगे। हे इस्राएल के घराने, जब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बुरे चाल चलन और बिगड़े हुए कामों के अनुसार नहीं, परंतु अपने ही नाम के निमित्त बर्ताव करूं, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। दक्षिण में आग। 45 वचन से आगे, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुख दक्षिण की ओर कर, दक्षिण की ओर वचन सुना और दक्षिण देश के वन के विषय में भविष्यद्वाणी कर और दक्षिण देश के वन से कहे, यहोवा का यह वचन सुन। प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं तुझ में आग लगाऊंगा और तुझ में क्या हरे क्या सूखे जितने पेड़ हैं सबको वह भस्म करेगी। उसकी धधकती ज्वाला न बुझेगी और उसके कारण दक्षिण से उत्तर तक सबके मुख झुलस जाएंगे। तब सब प्राणियों को सूझ पड़ेगा कि यह आग यहोवा की लगाई हुई है और यह कभी न बुझेगी। तब मैंने कहा, हाय परमेश्वर यहोवा, लोग तो मेरे विषय में कहा करते हैं कि क्या वह दृष्टांत ही का कहने वाला नहीं है। परमेश्वर की तलवार। 21 अध्याय पहले वचन से, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुख यरूशलेम की ओर कर और पवित्र स्थानों की ओर वचन सुना। इस्राएल देश के विषय में भविष्यद्वाणी कर और उससे कहे, प्रभु यहोवा यूं कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ और अपनी तलवार म्यान में से खींचकर तुझ में से धर्मी और अधर्मी दोनों का नाश करूंगा, इसलिए कि मैं तुझ में से धर्मी और अधर्मी सबका नाश करने वाला हूँ। इस कारण मेरी तलवार म्यान से निकलकर दक्षिण से उत्तर तक सब प्राणियों के विरुद्ध चलेगी। तब सब प्राणी जान लेंगे कि यहोवा ने म्यान में से अपनी तलवार खींची है और वह उसमें फिर रखी न जाएगी। इसलिए हे मनुष्य के संतान, तो आह मार, भारी खेद कर और टूटी कमर लेकर लोगों के सामने आह मार। जब वे तुझसे पूछे तो क्यों आह मारता है, तब कहना समाचार के कारण, क्योंकि ऐसी बात आने वाली है कि सबके मन टूट जाएंगे और सबके हाथ ढीले पड़ेंगे, सबकी आत्मा बेबस और सबके घुटने निर्बल हो जाएंगे। देखो ऐसी ही बात आने वाली है और वह अवश्य पूरी होगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, भविष्यद्वाणी करके कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख सान चढ़ाई हुई तलवार और झलकाई हुई तलवार, वह इसीलिए सान चढ़ाई गई कि उससे घात किया जाए और इसीलिए झलकाई गई कि बिजली के समान चमके। तो क्या हम हर्षित हो? वह तो यहोवा के पुत्र का राजदंड है और सब पेड़ों को तुच्छ जानने वाला है। वह झलकाने को इसलिए दी गई कि हाथ में ली जाए, वह इसलिए सान चढ़ाई और झलकाई गई कि घात करने वालों के हाथ में दी जाए। हे मनुष्य के संतान, चिल्ला और हाय हाय कर
क्योंकि वह मेरी प्रजा पर चला चाहती है, वह इस्राएल के सारे प्रधानों पर चला चाहती है। मेरी प्रजा के संग वे भी तलवार के वश में आ गए। इस कारण तो अपनी छाती पीट, क्योंकि सचमुच उसकी जांच हुई है। और यदि उसे तुच्छ जानने वाले राजदंड भी न रहे तो क्या? परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। इसलिए हे मनुष्य के संतान, भविष्यद्वाणी कर और हाथ पर हाथ दे मार, और 3 बार तलवार का बल दुगुना किया जाए। वह तो घात करने को की तलवार वरन बड़े से बड़े के घात करने की तलवार है, जिससे कोठरियों में भी कोई नहीं बच सकता। मैंने घात करने वाली तलवार को उनके सब फाटकों के विरुद्ध इसलिए चलाया है कि लोगों के मन टूट जाए और वे बहुत ठोकर खाए। हाय हाय, वह तो बिजली के समान बनाई गई और घात करने की सान चढ़ाई गई है। सिकुड़ कर दाहिनी ओर जा, फिर तैयार होकर बाई ओर मुड़। जिधर भी तेरा मुख हो, मैं भी ताली बजाऊंगा और अपने जलजलाहट को ठंडा करूंगा। मुझ यहोवा ने ऐसा कहा है। बेबीलोन के राजा की तलवार, 18 वचन से आगे। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, 2 मार्ग ठहरा ले कि बेबीलोन के राजा की तलवार आए। दोनों मार्ग एक ही देश से निकले। फिर एक चिन्ह कर, अर्थात नगर के मार्ग के सिर पर एक चिन्ह कर। एक मार्ग ठहरा कि तलवार अम्मोनियों के रब्बा नगर पर और यहूदा देश के गढ़वाले नगर यरूशलेम पर भी चले, क्योंकि बेबीलोन का राजा तिमोहा ने अर्थात दोनों मार्गों के निकलने के स्थान पर भावी बुझने को खड़ा हुआ है। उसने तीरों को हिला दिया और गृह देवताओं से प्रश्न किया और कलेजे को भी देखा। उसने दाहिने हाथ में यरूशलेम का नाम है, उसके दाहिने हाथ में यरूशलेम का नाम है कि वह उसकी ओर युद्ध के यंत्र लगाए और गला फाड़ कर घात करने की आज्ञा दे और ऊंचे शब्द से ललकारे। फाटकों की ओर युद्ध के वस्त्र लगाए और दमदमा बांधे और कोट बनाए। परंतु लोग तो उस भावी कहने को मिथ्या समझेंगे। उन्होंने जो उनकी शपथ खाई है, इस कारण वह उनके अधर्म का स्मरण कराकर उन्हें पकड़ लेगा। इस कारण प्रभु यहोवा यो कहता है, इसलिए कि तुम्हारा अधर्म जो स्मरण किया गया है और तुम्हारे अपराध जो खुल गए हैं, क्योंकि तुम्हारे सब कामों में पाप ही पाप दिखाई पड़ा है और तुम स्मरण में आए हो, इसलिए तुम उन्हीं से पकड़े जाओगे। हे इस्राएल, दुष्ट प्रधान, तेरा दिन आ गया है, अधर्म के अंत का समय आ पहुंचा है। तेरे विषय में परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, पगड़ी उतार और मुकुट भी उतार दे। वह ज्यों का त्यों नहीं रहने का। जो नीचा है उसे ऊंचा कर और जो ऊंचा है उसे नीचा कर। मैं उसको उलट दूंगा और उलट पुलट कर दूंगा। हाँ, उलट दूंगा, और जब तक उसका अधिकारी न आए तब तक वह उल्टा हुआ रहेगा। तब मैं उसे दे दूंगा अम्मोनियों के विरुद्ध तलवार। 28 वचन से आगे। फिर हे मनुष्य के संतान, भविष्यद्वाणी करके कहे कि प्रभु यहोवा अम्मोनियों और उनकी की हुई नामधराई के विषय में यों कहता है, तो यों कहे, खींची हुई तलवार है, वह तलवार घात के लिए झलकाई हुई है कि नाश करे और बिजली के समान हो, जब तक कि वे तेरे विषय में झूठे दर्शन पाते और झूठे भावी तुझको बताते हैं कि तो उन दुष्ट असाध्य घायलों की गर्दनों पर पड़े, जिनका दिन आ गया और जिनके अधर्म के अंत का समय आ पहुंचा है। उसको म्यान में फिर रख, जिस स्थान में तू सिरजी गई और जिस देश में तेरी उत्पत्ति हुई, उसी में मैं तेरा न्याय करूंगा। मैं तुझ पर अपना क्रोध भड़काऊंगा और तुझ पर अपनी जलजलाहट की आग फूंक दूंगा और तुझे पशु सरीखे मनुष्यों के हाथ कर दूंगा, जो नष्ट करने में निपुण है। तो आग का कौर होगी, तेरा खून देश में बना रहेगा, तो स्मरण में न रहेगी, क्योंकि मुझ यहोवा ही ने ऐसा कहा है। 2 years Bible reading plan. 1 John 4th chapter 15 to 21 verse. Daniel 3rd chapter और 4th chapter.
2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में पहला यूहन्ना 4 अध्याय 15 से 21 वचन तक और दनियल की पुस्तक 3 अध्याय और 4 अध्याय। पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग जेम्स वर्शन में से, इन्हीं को हम हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। 1 जॉन 4th चैप्टर 15th वर्स से पढ़ेंगे 21 वर्स तक। Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him, and he in God. And we have known and believed the love that God hath to us. God is love, and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment, because as he is, so are we in this world. There is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. We love him because he first loved us. If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen? And this commandment have we from him, that he who loveth God love his brother also. पहला यूहन्ना 4 अध्याय 15 वचन से 21 वचन तक पढ़ेंगे। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी है। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। Daniel chapter 3. Shadrach, Meshach and Abednego are cast into a fiery furnace. First verse से पढ़ेंगे। Nebuchadnezzar the king made an image of gold, whose height was 60 cubits, and the breadth thereof 6 cubits. He set it up in the plain of Dura, in the power of Babylon. Then Nebuchadnezzar the king sent together the princes, the governors, and the captains, the judges, and the treasurers, the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces, to come to the dedication of the image which Nebuchadnezzar the king had set up. Then the princes, the governors and captains, the judges, the treasurers, the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces were gathered together unto the dedication of the image that Nebuchadnezzar the king had set up. And they stood before the image that Nebuchadnezzar had set up. Then an herald cried out, To you it is commanded, O people, nations, and languages, that at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, dulcimer, and all kinds of music, ye fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king hath set up. And whoso faileth not
whoso falleth not down and worshippeth shall the same hour be cast into the midst of a burning fiery furnace. Therefore, at that time when all the people heard the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and all kinds of music, all the people, the nations, and the languages fell down and worshipped the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up. Wherefore at that time certain Chaldeans came near and accused the Jews. They spake and said to the king Nebuchadnezzar, O king, live forever. Thou, O king, hast made a decree that every man that shall hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music, shall fall down and worship the golden image. And whoso falleth not down and worshippeth, that he should be cast into the midst of a burning fiery furnace. There are certain Jews whom thou hast set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego. These men, O king, have not regarded thee. They serve not thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Then Nebuchadnezzar, in his rage and fury, commanded to bring Shadrach, Meshach, and Abednego. Then they brought these men before the king. Nebuchadnezzar spake and said unto them, Is it true, O Shadrach, Meshach, and Abednego? Do not ye serve my gods, nor worship the golden image which I have set up? Now, if ye be ready, that at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music, ye fall down and worship the image which I have made. Well, but if ye worship not, ye shall be cast the same hour into the midst of a burning fiery furnace. And who is that God that shall deliver you out of my hands? Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand, O king. But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Then was Nebuchadnezzar full of fury, and the form of his visage was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego. Therefore he spake and commanded that they should heat the furnace 17 times more than it was wont to be heated. 7 times more than it was wont to be heated. And he commanded the most mighty men that were in his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego, and to cast them into the burning fiery furnace. Then these men were bound in their coats, their hosen, and their hats, and their other garments, and were cast into the midst of the burning fire furnace. Therefore, because the king's commandment was urgent, and the furnace exceeding hot, the flame of the fire slew those men that took up Shadrach, Meshach, and Abednego. And these 3 men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down bound in the midst of the burning fiery furnace. Then Nebuchadnezzar the king was astonished, and rose up in haste, and spake and said unto his counselors, Did not we cast 3 men bound into the midst of the fire? They answered and said unto the king, True, O king. He answered and said, Lo, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt, and the form of the 4th is like the Son of God. Then Nebuchadnezzar came near to the mouth of the burning fiery furnace, and spake and said, Shadrach, Meshach, and Abednego, ye servants of the Most High God, come forth and come hither.
Then Shadrach, Meshach, and Abednego came forth of the midst of the fire, and the princes, governors, and captains, and the king's counselors, being gathered together, saw these men upon whose bodies the fire had no power, nor was an hair of their head singed, neither were their coats changed, nor the smell of fire had passed on them. Then Nebuchadnezzar spake and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who hath sent his angel and delivered his servants that trusted in him, and have changed the king's word, and yielded their bodies that they might not serve nor worship any god except their own God. Therefore I make a decree that every people, nation, and language which speak anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be cut in pieces, and their houses shall be made a dunghill, because there is no other God that can deliver after this sort. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Fourth chapter. Nebuchadnezzar acknowledges God's eternal dominion. He relates a dream. Daniel interprets it. The dream fulfilled. Nebuchadnezzar the king, unto all people, nations, and languages that dwell in all the earth, peace be multiplied unto you. I thought it good to show the signs and wonders that the high God hath wrought toward me. How great are his signs, and how mighty are his wonders! His kingdom is an everlasting kingdom, and his dominion is from generation to generation. I, Nebuchadnezzar, was at rest in mine house, and flourishing in my palace. I saw a dream which made me afraid, and the thoughts upon my bed and the visions of my head troubled me. Therefore made I a decree to bring in all the wise men of Babylon before me, that they might make known unto me the interpretation of the dream. Then came in the magicians, the astrologers, the Chaldeans, and the soothsayers, and I told the dream before them. But they did not make known unto me the interpretation thereof. But at the last Daniel came in before, whose name was Belteshazzar, according to the name of my God, and in the whom is the spirit of the holy gods. And before him I told the dream, saying, Belteshazzar, master of the magicians, because I know that the spirit of the holy gods is in thee, and no secret troubleth thee. Tell me the visions of my dream that I have seen, and the interpretation thereof. Thus were the visions of mine head in my bed. I saw, and behold, a tree in the midst of the earth, and the height thereof was great. The tree grew and was strong, and the height thereof reached unto heaven, and the sight thereof to the end of all the earth. The leaves thereof were fair, and the fruit thereof much, and in it was meat for all. The beasts of the field had shadow under it, and the fowls of the heaven dwelt in the boughs thereof, and all flesh was fed of it. I saw in the visions of my head upon my bed, and behold, a watcher and an holy one came down from heaven. He cried aloud and said thus, Hew down the tree, and cut off his branches, shake off his leaves, and scatter his fruits. Let the beasts get away from under it, and the fowls from his branches. Nevertheless, leave the stump of his roots in the earth, even with a band of iron and brass, in the tender grass of the field, and let it be wet with the dew of heaven, and let his portion be with the beasts in the grass of the earth. Let his heart be changed from man's, and let a beast's heart be given unto him, and let 7 times pass over him. This matter is by the decree of the watchers, and the demand by the word of the holy ones, to the intent that the living may know that the Most High ruleth in the kingdom of men,
and giveth it to whomsoever he will, and setteth up over it the basest of men. This dream I, King Nebuchadnezzar, have seen. Now thou, O Belteshazzar, declare the interpretation thereof, for as much as all the wise men of my kingdom are not able to make known unto me the interpretations, but thou art able, for the spirit of the holy gods is in thee. Then Daniel, whose name was Belteshazzar, was astonished for 1 hour, and his thoughts troubled him. The king spake and said, Belteshazzar, let not the dream or the interpretation thereof trouble thee. Belteshazzar answered and said, My lord, the dream be to them that hate thee, and the interpretation thereof thine enemies. The tree that thou sawest which grew and was strong, whose height reached unto the heaven, and the sight thereof to all the earth, whose leaves were fair, and the fruit thereof much, and in it was meat for all, under which the beasts of the field dwelt, and upon whose branches the fowls of the heaven had their habitation. It is thou, O king, that art grown and become strong, for thy greatness is grown, and reacheth unto heaven, and thy dominion to the end of the earth. And whereas the king saw a watcher and an holy one coming down from heaven, and saying, Hew the tree down, destroy it, yet leave the stump of the roots thereof in the earth, even with a band of iron and brass in the tender grass of the field, and let it be wet with the dew of heaven, and let his portion be with the beasts of the field, till 7 times pass over him. This is the interpretation, O king, and this is the decree of the Most High, which is come upon my lord the king, that they shall drive thee from men, and thy dwelling shall be with the beasts of the field, and they shall make thee to eat grass as oxen, and they shall wet thee with the dew of heaven, and 7 times shall pass over thee, till thou know that the Most High ruleth in the kingdom of men, and giveth it to whomsoever he will. And whereas they commanded to leave the stump of the tree roots, thy kingdom shall be sure unto thee. After that thou shalt have known that the heavens do rule. Wherefore, O king, let my counsel be acceptable unto thee, and break off thy sins by righteousness, and thine iniquities by shewing mercy to the poor, if it may be a lengthening of thy tranquility. All this came upon the king Nebuchadnezzar. At the end of 12 months, he walked in the palace of the kingdom of Babylon. The king spake and said, Is not this great Babylon that I have built for the house of the kingdom of by the might of my power, and for the honor of my majesty? While the word was in the king's mouth, there fell a voice from heaven, saying, O king Nebuchadnezzar, to thee it is spoken, the kingdom is departed from thee, and they shall drive thee from men, and thy dwelling shall be with the beasts of the field. They shall make thee to eat grass as oxen, and 7 times shall pass over thee, until thou know that the Most High ruleth in the kingdom of men, and giveth it to whomsoever he will. The same hour was the thing fulfilled upon Nebuchadnezzar, and he was driven from men, and did eat grass as oxen, and his body was wet with the dew of heaven, till his hairs were grown like eagles' feathers, and his nails like birds' claws. And at the end of the days I, Nebuchadnezzar, lifted up mine eyes unto heaven, and mine understanding returned unto me. And I blessed the Most High, and I praised and honored him that liveth forever, whose dominion is an everlasting dominion, and his kingdom is from generation to generation. And all the inhabitants of the earth are reputed as
nothing, and he doeth according to his will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth, and none can stay his hand and or say unto him, what doest thou? At the same time my reason returned unto me, and for the glory of my kingdom mine honor and brightness returned unto me, and my counselors and my lords sought unto me, and I was established in my kingdom, and excellent majesty was added unto me. Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven, all whose works are truth, and his ways judgment, and those that walk in pride he is able to abase. दानियेल की पुस्तक 3 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। सोने की मूर्ति को दंडवत करने का आदेश। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूर्त बनवाई जिसकी ऊंचाई 7 हाथ और 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हकीमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हकीम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा में के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। तब ढिंढोरिये ने ऊंचे शब्द से पुकारकर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। जो कोई गिरकर दंडवत न करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। इस कारण उस समय ज्यों ही सब जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा, त्यों ही देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूरत को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत की। दानियेल के साथियों पर आज्ञा उल्लंघन का आरोप। 8 वचन से आगे। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे। हे राजा, तूने तो यह आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने वह गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत न करे वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत न करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथों से छुड़ा सके?
शद्रक, मेशक और अबेदनेगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टी के आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। दानिय्येल के साथियों का भट्टे में डाला जाना। 19 वचन से आगे, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे की 7 गुना अधिक धधका दो, भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपने सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मौजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को उठाया वे ही आग के आंच में से जल मरे, और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनेगो कंधे बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनकी कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। दानिय्येल के साथियों का सम्मान। 26 वचन से आगे, फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनेगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनेगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनके देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी न झुलसा, न उनके मोजे कुछ बिगड़े, न उनमें जलने को कुछ गंध पाई गई। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनेगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत न करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनेगो का पद और ऊंचा किया। चौथा अध्याय, नबूकदनेस्सर का दूसरा स्वप्न। पहले वचन से पढ़ेंगे। नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारी पृथ्वी पर रहते हैं उन सबों को यह वचन मिला, तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े। मुझे यह अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं उनको प्रकट करूं। उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मैं नबूकदनेस्सर अपने भवन में चैन से और प्रफुल्लित रहता था। मैंने ऐसा स्वप्न देखा जिसके कारण मैं डर गया और पलंग पर पड़े पड़े जो विचार मेरे मन में आए और जो बातें मैंने देखी उनके कारण मैं घबरा गया था।
तब मैंने आज्ञा दी कि बेबीलोन के सब पंडित मेरे वचन का फल मुझे बताने के लिए मेरे सामने हाजिर किए जाए। जब ज्योतिषी, तंत्री, कसदी और होनहार बताने वाले भीतर आए और मैंने उनको अपना स्वप्न बताया, परंतु वे उसका फल न बता सके, अंत में दनियल मेरे सम्मुख आया, जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण बेलतशस्सर रखा गया था, और जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। और मैंने उसको अपना स्वप्न यह कहकर बता दिया, हे बेलतशस्सर, तू तो सब ज्योतिषियों का प्रधान है। मैं जानता हूँ कि तुझ में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और तो किसी भेद के कारण नहीं घबराता। इसलिए जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताकर समझा दे। जो दर्शन मैंने पलंग पर पाया वह यह है, मैंने देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा है, उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है। वह वृक्ष बड़ा होकर दृढ़ हो गया और उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची, और वह सारी पृथ्वी की छोर तक दिखाई पड़ता था। उसके पत्ते सुंदर और उसमें बहुत फल है, यहाँ तक कि उसमें सबों के लिए भोजन था। उसके नीचे मैदान के सब पशुओं को छाया मिलती थी, और उसकी डालियों में आकाश की सब चिड़िया बसेरा करती थी, और सब प्राणी उससे आहार पाते थे। मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया। उसने ऊंचे शब्द से पुकारकर यह कहा, वृक्ष को काट डालो, उसकी डालियों को छाट दो, उसके पत्ते झाड़ दो और उसके फल बिखरा डालो। पशु उसके नीचे से हट जाए और चिड़िया उसकी डालियों पर से उड़ जाए, तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो, और उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान के हरी घास के बीच रहने दो। वह आकाश की ओस से भीगा करे और भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संग भागी हो। उसका मन बदले और मनुष्य का ना रहे, परंतु पशु का सा बन जाए, और उस पर 7 काल बीते। यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित है वे जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है, और उसका जिसे चाहे उसे दे देता है, और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। मुझ नबूकदनेस्सर राजा ने यही स्वप्न देखा। इसलिए हे बेलतशस्सर, तो इसका फल बता, क्योंकि मेरे राज्य में और कोई पंडित इसका फल मुझे समझा नहीं सकता, परंतु तुझ में तो पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, इस कारण तो उसे समझा सकता है। दनियल द्वारा स्वप्न का अर्थ बताया जाना। 19 वचन से आगे, तब दनियल, जिसका नाम बेलतशस्सर भी था, घड़ी भर घबराता रहा और सोचते सोचते व्याकुल हो गया। तब राजा कहने लगा, हे बेलतशस्सर, इस स्वप्न से या इसके फल से तो व्याकुल मत हो। बेलतशस्सर ने कहा, हे मेरे प्रभु, यह स्वप्न तेरे बैरियों पर और इसका अर्थ तेरे द्रोहियों पर फले। जिस वृक्ष को तूने देखा, जो बड़ा और दृढ़ हो गया और जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची, और जो पृथ्वी के सिरे तक दिखाई देता था, जिसके पत्ते सुंदर और फल बहुत थे, और जिसमें सबों के लिए भोजन था, जिसके नीचे मैदान के सब पशु रहते थे, और जिसकी डालियों में आकाश की चिड़िया बसेरा करती थी। हे राजा, वह तू ही है, और तू महान और सामर्थी हो गया। तेरी महिमा बड़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई, और तेरी प्रभुता पृथ्वी के छोर तक फैली है। हे राजा, तूने जो एक पवित्र पहरुए को स्वर्ग से उतरते और यह कहते देखा कि वृक्ष को काट डालो और उसका नाश करो, तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो, और इसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो। वह आकाश की ओस से भीगा करे और उसको मैदान के पशुओं के संग ही भाग मिले, और जब तक 7 युग उस पर बीत ना चुके,
तब तक उसकी ऐसी ही दशा रहे। हे राजा, इसका फल जो परमप्रधान ने ठान लिया है कि राजा पर घटे वह यह है कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। तो बैलों के समान घास चरेगा और आकाश की ओस से भिगा करेगा। और 7 युग तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू न जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। वह उस वृक्ष के ठूंठ को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, इसका अर्थ यह है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा। और जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग ही में है, तब तू फिर से राज्य करने पाएगा। इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है, जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा। और 7 काल तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू न जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा और उसकी देह आकाश की ओस में भिगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। नबूकदनेस्सर द्वारा परमेश्वर का स्तुति गान। 34 वचन से आगे, उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर कहने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता है, तूने यह क्या किया है। उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। प्रभु यीशु हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।